Hello, my class 4. How are you all? I hope all the students are good and enjoying good health. So, class 4, it's your lecture number 20 of English, and I welcome all of you to this lecture. So, class 4, today we are going to learn about very interesting exercise. We are going to learn about different concepts, and I hope you all will enjoy it and you will get to know so many information in this lecture. So, let's start, class 4. Okay, open your course books and open your page number 36. Okay, the exercise we are going to do is learn grammar, and it's part 3 of learn grammar. Okay, let's start. Work with a partner. One of you should play the role of a customer and the other the role of a shopkeeper. The customer should tell the shopkeeper what he or she wants to buy. The shopkeeper will say whether the thing is available. Okay, this activity you have to do in the groups. Okay, you have to make a partner. Okay, you have to do this at your home as I'm not with you. So when school will reopen, we will also do this at school also, but at this time and in this circumstances you have to do at your home. Okay, you have to make a partner. You can do this activity with your parents or with your siblings, with whomever you are comfortable. Okay, so you have to make a partner, and then you have to do some dialogues. Okay, one person will be the customer and the other will be the shopkeeper, and you have to continue the dialogues. Okay, what you have to do, they have said कि जैसे एक बंदा shopkeeper बन रहा है and the next one is the customer, and you have to go through, you have to enjoy a dialogue. You have to start a dialogue, and the customer will tell what he needs, and the shopkeeper will tell whether he has all these things in his shop or not. Okay, the shopkeeper will say whether the thing is available. Okay, shopkeeper बताएगा कि ये चीज़ उसकी दुकान में है कि नहीं. Okay, he will satisfy the customer. Okay, so come to the page number 37 now. Use the information in these role cards. ओके इन्होंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है. कस्टमर का एक कॉलम बनाया और शॉपकीपर का कि आप ऐसे अपना डायलॉग स्टार्ट कर सकते हैं. दे हैव ऑल्सो गिवन यू एन एग्जाम्पल. ओके, कस्टमर, यू वॉन्ट टू बाय. ओके, ये कस्टमर के लिए है. ओके, हु एवर इज़ द कस्टमर, दिस इंफॉर्मेशन इज़ फॉर हिम और हर. ओके, कस्टमर ने क्या कुछ ख़रीदना, उन्होंने बताया यू वांट टू बाय 3 पैकेट ऑफ बैलून्स. आपने 3 पैकेट ख़रीदने बैलून्स के. 6 डिज़नी फेस मास्क, आपने डिज़नी के फेस मास्क ख़रीदनी है 6 फेस मास्क. डिज़नी के मीन्स डिज़नी के करेक्टर्स बने हुए उस पर, और वो फेस मास्क हैं. ठीक है, फिर 2 डज़न आपने पेपर कप्स चाहिए आपको और प्लेट्स चाहिए. 2 डज़न यानी एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 डज़न आपको चाहिए, 2 दर्जन आपको चाहिए पेपर कप्स भी और प्लेट्स भी. और 6 बाउंसिंग बॉल्स चाहिए आपको. ठीक है, और 2 आपको चाहिए ग्लव पपेट्स. ओके, व्हाट आर द ग्लव पपेट्स? इफ़ यू हैव गॉन थ्रू पपेट शो, यू हैव सीन देयर दैट जो पपेट शो हो रहा होता है उसमें जो ये रोल प्ले कर रहा होता है, उन्होंने हाथ में ग्लव्स सा पहना होता है और उस पर डिफरेंट किस्म के पपेट्स बने होते हैं, जैसे डिफरेंट एनिमल्स बने होते हैं, और वो फिर अपने हाथ में ग्लव पहना होता है, उससे वो पूरा शो रन करते हैं. ओके, सो द लेडी वांट्स, सो दिस कस्टमर वांट्स the glove puppets. Okay, so 2 glove puppets. Okay, so they have given you the information. उन्होंने बताया आपको कि कस्टमर को ये सब चीज़ें चाहिए. ओके, और अब उन्होंने बताया कि शॉपकीपर के पास क्या कुछ है. You have these things in your shop. Okay, balloons 8 पैकेट्स. बलून्स के उनके पास हैं 8 पैकेट्स. ठीक है, जबकि अगर आप देखें तो कस्टमर को कितने चाहिए, 3 पैकेट्स ऑफ बलून्स, तो उनके पास यानी इनफ हैं, 8 पैकेट्स हैं. ठीक है, फिर देखें डिज़नी फेस मास्क उनके पास 4 हैं, और जो कस्टमर है उसको 6 चाहिए, सो दे डोंट हैव इनफ फेस मास्क. ओके, देन पेपर कप्स उनके पास 8 डज़न है, सो द कस्टमर वांट्स 2 डज़न, सो इट्स ऑल्सो इनफ. देन पेपर प्लेट्स 1 डज़न, बट द कस्टमर वांट्स 2 डज़न, सो इट्स नॉट इनफ. ओके, देन ग्लव पपेट्स नन, उनके पास ग्लव पपेट्स हैं ही नहीं. फिर बाउंसिंग बॉल्स 6 एंड द लेडी वांट 6 बाउंसिंग बॉल्स, उनके पास उतनी ही बाउंसिंग बॉल्स हैं जितनी उस कस्टमर को चाहिए. सो दे हैव गिवन यू दिस क्लू, दिस इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू स्टार्ट योर डायलॉग लाइक दिस. ओके, योर कन्वर्सेशन में गो like this. Do you have any? Okay, you can see in this picture that there is a lady and there is the shopkeeper. Okay,
and now lady have come to the shop and she's asking, do you have any? Okay, first you will start your conversation like, do you have any, like आप अपने सबसे first पे जिस balloons उन्होंने आपको बताया, तो you can write, do you have any 3 packets of balloons? Then the shopkeeper will say, yes we do, how many do you want? फिर वो पूछेगा आपको कितने चाहिए. Then you can see she has said that also I want some. फिर वो अपने दूसरी चीज़ के बारे में बताएगी, that I want some Disney face masks. Then the shopkeeper will say, how many can I give you? फिर ये पूछेगा मैं आपको कितने दे सकता हूँ. और आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप कह सकते हैं, आई एम सॉरी आई डोंट हैव एनी इन स्टॉक, कि मेरे पास अभी नहीं है, ख़त्म हुए हैं, स्टॉक में नहीं है. फिर और आई हैव नो, और आप ये भी कह सकते हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, उसके पास ग्लव पपेट्स नहीं थे. जब कस्टमर पूछेगा कि ग्लव पपेट्स हैं आपके पास, तो शॉपकीपर विल से नो आई हैव नो ग्लव पपेट्स राइट नाउ. ओके, यू कैन, उन्होंने आपको लाइंस बताई हैं कुछ कि आप अपने जो डायलॉग है उसमें ये लाइंस यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आप अपने आंसर इस तरह कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग राइट. आई रियली वांट दैट यू ऑल डू दिस. और मैं आप सबको अपने सामने भी करवाऊँगी ये, व्हेन स्कूल विल रीओपन, हम अपने सामने भी ये करूँगी, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज राइट. It seems really interesting, and when you all will do it, then it will be really enjoyable. So I want to say it really soon. Okay, but now you have to do this at your home, so please do it. Class 4, I know you all will enjoy it, so please do this. It's just a fun activity. Okay, so do this and tell me in the group. Okay, now come to the next one. Okay, learn grammar part B. Okay, now we are going to learn about some concepts, the, is and an. Okay, look at these sentences. Number 1, the chemist saw her but didn't pay any attention. ओके, अब उन्होंने हमें 3 सेंटेंसेस दिए, उन्होंने कहा अब इन सेंटेंसेस को देखें. सबसे पहला सेंटेंस है, ओके क्लास 4, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द, आ एंड एन. ओके, दैट वेयर वी हैव टू यूज़ द, आ एंड एन. व्हाट आर द रूल्स? ओके, the number 1 sentence is, the chemist saw her but didn't pay any attention. Okay, we have heard this line right. This line is from your chapter Test Buys a Miracle. Okay, chemist ने उसको देखा लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. Number 2 is, the chemist's brother, a well-dressed man, was listening to the conversation between his brother and the little girl. जो chemist का भाई, दवा सांस का जो भाई था, जो एक बहुत अच्छे लिबास में मलबूस था, जिसने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, वेल ड्रेस था, उसने कन्वर्सेशन सुनी अपने भाई की और उस छोटी लड़की के बारे में. नंबर 3 सेंटेंसेस, शी वेंट टू हर रूम एंड टुक अ जार आउट ऑफ हर कबर्ड. वो अपने कमरे में गई और उसने एक जार निकाला अपने कबर्ड से. ओके, डिड यू नोटिस हाउ द इज़ यूज इन दीज सेंटेंसेस? क्या आपने नोटिस किए कि इन सेंटेंसेस में द का कैसा यूज़ हुआ है? सेंटेंस 1 begins with the chemist. जो सबसे पहला वाला सेंटेंस है वो द केमिस्ट से यूज़ हुआ है. एज यू कैन सी, it is clear from the context which chemist is being talked about because the girl is at a drugstore. Okay, why they have used the? Okay, it is clear. उन्होंने कहा है कि वो क्लियर है कॉन्टेक्स्ट से जिस बारे में बात हो रही है, कि which chemist is being talked about because the girl is at a drugstore. उन्होंने कहा है कि ये कौन से केमिस्ट की बात हो रही है, सबको ऑब्वियस है ये कि कौन सा केमिस्ट जो है एक इंसान, ये कौन सा, ये नाउन है. ठीक है, किसी चीज़ को, किसी शख्स, किसी जगह को कहते हैं ना हम नाउन. ठीक है, केमिस्ट इज़ अ नाउन. तो जब एक नाउन हमें पता होता है कि ये हमें पता है, ये और जहाँ कहीं बात हो रही है वहाँ पता है कि ये कौन से नाउन की बात हो रही है. ठीक है, जब स्पीकर को भी, लिसनर को भी पता और स्पीकर को भी पता है किस नाउन के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ हम दा लगाते हैं. जब हमें पता है कि कौन से केमिस्ट की, जिस तरह हमें यहाँ पे पता है कि कौन से केमिस्ट की बात हो रही है, उसी केमिस्ट की जिस ड्रग स्टोर पे टेस्ट गई थी. ठीक है, और किसी केमिस्ट की बात नहीं हो रही कि आउटसाइडर, अगर बाहर से कोई केमिस्ट आता है तो हम कहते हैं केमिस्ट हैज़ कम, इस तरह. ठीक है, लेकिन ये दुकान के अंदर है, हमें पता है, तो उन्होंने अपना सेंटेंस यूज़ किया दा से. ओके, जब हमें पता होता है कि कौन से नाउन की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम दा लगाते हैं. ठीक है, okay, as you can see, it is clear from the context which chemist is being talked about because the girl is at a drugstore. Okay, we use the before a noun if it is clear from the context which noun we are talking about, right? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम उस नाउन से पहले दा लगाते हैं जब हमें पता होता है, जब एक लिसनर को और स्पीकर दोनों को पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही, कौन से नाउन के बारे में बात हो रही है, तब हम दा लगाते हैं.
ओके वी ऑल्सो यूज़ द विद द प्रॉपर नाउन्स. ओके प्रॉपर नाउन्स यानी ख़ास नाउन्स, यानी ख़ास चीज़ है, कोई ख़ास जगह है या कोई ख़ास इंसान है. एज यू कैन सी दैट द होली कुरान, वी वॉन्ट राइट आ होली कुरान, वी नेवर से आ होली कुरान. ओके वी ऑलवेज राइट द होली कुरान. फिर अब देखें किसी राइटर की बात, एक ऑथर है कोई, उसका नाम जैसे यू कैन से जॉनथन स्विफ्ट एक ऑथर है. ठीक है, इट्स एन ऑथर ऑफ अ नॉवल. ठीक है, जॉनथन स्विफ्ट. तो जब हम इसका नाम लेंगे ना जॉनथन स्विफ्ट, हम कहेंगे द जॉनथन स्विफ्ट राइट्स एन एसे और राइट्स ए नॉवल. ठीक है, लेकिन जब हम खाली ऑथर की बात करेंगे तो हम कहेंगे आ ऑथर, देयर इज़ अ ऑथर, इस आ ऑथर. ठीक है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक उस बंदे का नाम बता देंगे तो फिर हम आ लगाएंगे. ठीक है, जैसे ऑथर उसका हमने नाम बताया तो वो हम दा लगा देंगे, वो स्पेशल हो जाएगा, वो स्पेसिफिक. ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन बन जाएगा. ठीक है, फिर होली कुरान का मैंने आपको बताया. फिर जैसे कोई कार है, ठीक है, अब सिंपल कार है तो हम कहेंगे देयर इज़ अ कार. ठीक है, बट इफ़ वी विल स्पेसिफाई द ब्रांड ऑफ द कार, लाइक वी विल से दैट ऑडी. ओके, सो वी विल राइट द ऑडी हैज़ ग्रेट स्पीड. ओके, वी वॉन्ट राइट अ ऑडी हैज़ अ ग्रेट स्पीड, राइट, because it's a proper noun, so we will write the Audi has a great speed. We won't write Audi. okay, लेकिन जब हम खाली एक गाड़ी की बात करें तो हम आ लगाएंगे. ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर नाउन है कोई तो हम दा लाजमी लगाएंगे, वहाँ पे हमने आ नहीं लगाना. ठीक है, ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38, क्लास 4. ओके, notice that in sentence 2 also we find the being used before conversation. अब हम sentence 2 अगर हम देखें, जो हमें sentence 2 पिछले पेज पे बताया था, अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ भी दा का जो यूज़ है, we find the being used before conversation because it is clear from the context that it refers to the conversation between the girl and the chemist. okay, अब उन्होंने बताया कि वहाँ पे भी दा का इसलिए इस्तेमाल हुआ था क्योंकि हमें पता था कि किस लड़की और किस केमिस्ट के बारे में बात हो रही है. ओके, वी विल मूव, जैसे हम पिछले पेज पे आके देखते हैं, ये है सेंटेंस नंबर 2. द केमिस्ट्स ब्रदर, अ वेल ड्रेस्ड मैन, वाज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन. ओके, द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर. जो केमिस्ट का भाई था, वेल ड्रेस्ड मैन वाज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटिल गर्ल. ठीक है, तो क्या बात हुई है यहाँ पे कि वेल ड्रेस्ड मैन वाज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन. कौन सी कन्वर्सेशन थी जो उसके सामने शो हो रही थी, उसको पता था कि कौन सी कन्वर्सेशन की बात हो रही है. ठीक है, एज यू कैन सी हियर दे हैव सेड दैट वी फाइंड द बीइंग यूज्ड बिफोर कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन से पहले उन्होंने दा लगाया कि कौन सी कन्वर्सेशन है जो विजिबल थी, पता थी लिसनर को भी, स्पीकर को भी, जो स्पीकर उधर जो लोग खड़े हैं उनको भी पता लग रहा है कि कौन सी नाउन के बारे में, कौन सी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो हमने दा लगाया कन्वर्सेशन से पहले. ठीक है, that it refers to the conversation between the girl and the chemist. okay, also notice the use of the before little girl. In this case too, it is clear from the little girl is referred to the Tess. okay, अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड सेंटेंस में. okay, okay, as you can see in the second sentence, was listening to the conversation between his brother and the little girl. the little girl यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, as you can see here, the little girl, यहाँ पे दा यूज़ हुआ है एंड द लिटिल गर्ल. ठीक है, तो हमें पता है कि कौन सी लिटिल गर्ल के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे, इसलिए हमने, अगर कोई और लिटिल गर्ल कोई न्यू आती, हमें पता है कि उस ड्रग स्टोर पे सिर्फ 3 लोग हैं और यही वाली लिटिल गर्ल है. ठीक है, और कोई छोटी लड़की नहीं है. अगर कोई और नहीं आती तो हम कहते हैं देयर इज़ अ लिटिल गर्ल. ओके, लेकिन ये हमें पता है कि कौन सी कन्वर्सेशन, ये जो कन्वर्सेशन है ये उसके भाई के साथ कौन कर रहा है, वो छोटी लड़की जो पहले से दुकान में मौजूद थी. तो उन्होंने टेस का नाम नहीं लिखा, उन्होंने ये नहीं लिखा बिटवीन हिज ब्रदर एंड द टेस. दे हैव रिटन दैट बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटिल गर्ल. ओके, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस फ्रॉम हेयर दैट द लिटिल गर्ल इज टेस, so they have written the little girl instead of the name of the girl. okay, in sentence 3 notice the use of a before jar. okay, अब जो sentence 3 है उसमें सिर्फ उसमें नहीं दा यूज़ हुआ, उसमें आ यूज़ हुआ है. why?
because as you can see, she went to her room and took a jar. So now we don't know that which jar they are talking about. She's talking about which jar she is taking. इसके बारे में पूरे चैप्टर में हमने पहले नहीं ना सुना था कि पहले टेस्ट ने कोई अपने जार के बारे में बात की होगी, पहली दफ़ा अपने जार के बारे में बात करिए. सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ द जार. हमें पहली दफ़ा जब कोई बात पता लग रही है, हम उससे अवेयर नहीं हैं, हम मतलब हम रीडर थे ना, लिसनर हैं हम, तो हमें नहीं पता उसके बारे में, तो हम आ लगाएंगे. ठीक है, जब हमें पहले से पता होता कौन सा जार है तो यहाँ पे दा लगाया जाता. सबसे पहले जो हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो आ लगेगा, लेकिन जब हमें उसके बारे में पता ही नहीं है तो हम वहाँ पर दा लगाएंगे. ओके, ओके. इन सेंटेंस, ओके, इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर हमें कॉन्टेक्स्ट से पता नहीं लग रहा कि कौन से नाउन की बात हो रही है, वो यूज़ आ और एन बिफोर द नाउन द फर्स्ट टाइम वी टॉक अबाउट. जैसे हमें जार के बारे में नहीं पता था तो हमने आ लगाया, या हम एन लगाते हैं, और एन मोस्टली लगता है तब वॉवल से पहले, AEIOU. ओके, वी यूज़ द बिफोर द सेम नाउन व्हेन यू टॉक अबाउट इट अगेन. ओके, दा हम तब भी यूज़ करते हैं उस नाउन की. मैंने आपको बताया कि हम दा तब भी यूज़ करते हैं जब उस नाउन के पहले बात हो चुकी है और दोबारा बात हो रही है. लेकिन जब हम उस नाउन के बारे में पहली दफ़ा बात हो रही है तो हम आ लगाएंगे. लेकिन जब हम सेकंड टाइम बात कर रहे हैं तब हम उस नाउन के बारे में दोबारा से दा लगाएंगे, आ नहीं लगाएंगे. ठीक है, अब नीचे उन्होंने हमें एक्सरसाइज दी हैं 2 A और B. वहाँ पर भी हमने यही नोटिस करना है कि कौन सी बात फर्स्ट टाइम अगर हुई है तो हम आ लगाएंगे, कौन सी बात अगर दूसरी दफ़ा हो रही है तो हम वहाँ पर दा लगाएंगे. ठीक है. Fill in the blanks in the following paragraphs using a, an, or da. Filling the blanks in the following paragraphs using a, an, or da. Okay, हमने a, an और da लगाना है इन नीचे वाले paragraphs में. Okay, one day dash mother crab and her little crab were walking. One day dash mother crab. कौन सी mother crab है? किस मदर क्रैब के बारे में बात हुई? कौन इधर बात हुई कि क्रैब, माँ जो है क्रैब की. ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट में इसके बारे में पता लग रहा है कि कौन सी किसके बारे में बात हो रही है. तो वी विल राइट आ. वन डे अ मदर क्रैब एंड हर लिटिल क्रैब वर वॉकिंग अलॉन्ग डैश बीच. कौन सी बीच है? कौन सी बीच है ये हमें पता है. बीच, बीच के बारे में हम अवेयर हैं, इस वर्ड के बारे में भी हम अवेयर हैं. बीच ऐसा नाउन है जिसके बारे में हम अवेयर हैं, हम रीडर हैं. ठीक है, हम सुन रहे हैं तो हमें पता है पहले बीच क्या होती है, हमें इसके बारे में पता है. इस नाउन से हम अवेयर हैं. ठीक है, इससे हमें पता लग रहा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसी बीच के बारे में बात हो रही है जैसे बीच होती है नॉर्मली. ठीक है, इसके बारे में आपको पता है, यू आर अवेयर विद इट. सो वी विल राइट द वॉकिंग अलॉन्ग द बीच डैश सन वॉज शाइनिंग ब्राइट. कौन सा सन जो था शाइन कर रहा था ब्राइट. सन एक ही आपको पता है, तो हम एक ही सन होता है तो हम लगाएंगे द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट एंड डैश सी, और एक सी भी एक होता है तो एंड द सी लुक्ड लाइक डैश कारपेट ऑफ डायमंड्स. ओके, दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल राइट, यू हैव नॉट लिस्टन्ड इट बिफोर. इसका मतलब है कारपेट ऑफ डायमंड्स के. उन्होंने कहा है सी लुक लाइक, वो जो सी था, समुंदर, तो किसकी तरह लग रहा था, एक ऐसा लग रहा था कि कोई डायमंड का कारपेट बिछाया हुआ है. ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि वो जो सी था वो एक डायमंड के कारपेट की तरह लगा था, कि हमने कोई कारपेट बिछाया हुआ है जो जिसके ऊपर डायमंड यानी वो चमक रहा है. ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइम इस वर्ड के बारे में उन्होंने इस पैराग्राफ में भी जिक्र किया और हमने पहले भी नहीं सुना, हमें पता नहीं लग रहा कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है. तो वी विल राइट आ हियर and look like a carpet of diamonds. Okay, डैश मदर क्रैब सीम टू बी एंग्री. जो मदर क्रैब थी वो बहुत नाराज़ सी लग रही थी. और मदर क्रैब के बारे में उन्होंने पहले मैं बता दी ना फर्स्ट सेंटेंस पे, तब हमने आ लगाया था. बट हम अब यहाँ क्या लगाएंगे, द मदर क्रैब सीम टू बी एंग्री. शी केप्ट स्कोल्डिंग डैश लिटिल वन. ओके, लिटिल वन के बारे में पहले बात होगी हम. शी केप्ट स्कोल्डिंग मतलब वो डांटी जा रही थी छोटे क्रैब को. ओके, शी केप्ट स्कोल्डिंग द लिटिल वन. हम वाई वी विल राइट द, बिकॉज दे हैव told us about the little one and her mother also, so we will write the here. जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था तो हमने आ लगाया था. she kept scolding the little one. Okay, the next one you will do on your own. Okay, but I will read it for you. I will tell you the meaning. Every creature in dash world walks forward. हर creature जो है इस दुनिया में आगे फॉरवर्ड आगे को चलता है. एवरी क्रिएचर इन वर्ल्ड, अब वर्ल्ड नाउन है. ठीक है, तो कौन सा वर्ल्ड है, दुनिया की बात की, तो हमें इसके बारे में हम अवेयर हैं तो दा लगाएंगे हम यहाँ पे. एवरी क्रिएचर इन द वर्ल्ड वॉक्स फॉरवर्ड. वो उसकी माँ कहती है कि हर जो बंदा है वो इस दुनिया में आगे को बढ़ता है. वाई आर यू वॉकिंग बैकवर्ड्स, तुम पीछे को क्यों चल रही हो. शी सेड डैश यंग
क्रैब रिप्लाइड, यंग क्रैब ने रिप्लाई किया। फिर शी सेड डैश यंग क्रैब रिप्लाइड, ओके किसने, यंग क्रैब ने रिप्लाई किया, यानी उसके बारे में पहले बात होगी ना यंग क्रैब के बारे में, लिटिल वन के बारे में। उन्होंने पहले लिटिल वन लिखा था, अब यहाँ पे लिख दिया यंग क्रैब, तो वी विल राइट शी सेड द यंग क्रैब रिप्लाइड, ओके व्हाट यू से इज़ ट्रू मदर, व्हाट यू से इज़ ट्रू मदर, जो आप कहती हैं वो सच है माँ, बट रिमेंबर यू योरसेल्फ सेड, बट याद करें यू योरसेल्फ सेड डैश एग्जाम्पल फॉर मी, बट याद करें कि आपने मेरे लिए एग्जाम्पल सेट की थी। कौन सी एग्जाम्पल, यानी जो वो दोनों बात कर रहे हैं उनको पता है, उसकी माँ को पता है कि कौन सी एग्जाम्पल के बारे में बात हो रही है, राइट। जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बारे में नाउन है, ये हमें पता है इस बारे में कि ये एग्जाम्पल का मतलब भी हमें पता है। और वो जो दो लोग हैं, लिसनर और स्पीकर, लिसनर कौन है, क्रैब लिटिल वन जो है बोल रही है वो लिसनर है, और जो उसकी माँ है वो स्पीकर है, यानी जो उसकी माँ है, जो लिटिल वन यहाँ पे लिटिल वन बोल रही है तो वो स्पीकर है और माँ सुन रही है, तो माँ को याद आ गया कि कौन सी इसने एग्जाम्पल के बारे में बात कर रही है। ये हमें यहाँ पे अवेयर नहीं हो, लेकिन उसको पता है कि कौन सी एग्जाम्पल के बारे में मेरी माँ ये मेरी बेटी बात कर रही है, तो उसको याद आ गया कौन सी एग्जाम्पल है, तो यानी इस एग्जाम्पल की बात पहले हुई हुई है, ठीक है। तो जब लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है कि इस बारे में बात है, यानी उस बारे में बात हो चुकी है पहले, ठीक है, ये दोबारा बात हो गई है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यू ऑल नो दिस, आई हैव टोल्ड यू कि एक चीज़ के बारे में जब हम दोबारा बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट फॉलोइंग एग्जाम्पल, मैं सिर्फ आपकी एग्जाम्पल में आपकी सिर्फ जो आपने मुझे मिसाल दी थी मैं सिर्फ उसको फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, ओके। Okay, now come to the next one. On the page number 38, which is the part B. Maha woke up when someone rang. Maha उठी जब किसी ने रिंग डोर बेल बजाई. Rang dash डोर बेल. When someone rang, जब किसी ने रैंग किया यानी बजाया घंटी बजाई, ठीक है। रैंग डोर बेल, कौन सी डोर बेल, रैंग डोर बेल के बारे में, ओके। रैंग डैश डोरबेल, ओके कौन सी डोरबेल की बात हो रही है, ऑब्वियसली जो वहाँ के घर की है, ठीक है। ये तो हमें पता लग रहा है ना, ये डोरबेल नाउन है, ठीक है, चीज़ है, तो हमें पता लग रहा है कि कौन सी डोरबेल है। हम कॉन्टेक्स्ट जो जिस बारे में बात हो रही है हमें पता नहीं कौन सी बेल है, ठीक है, यानी हम अवेयर हैं इस चीज़ से पहले, तो हम क्या लगाएंगे, द, क्योंकि हमें पता लग रहा है ये किस नाउन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। रैंग द डोरबेल, शी ओपन डैश डोर, शी ओपन डोर हमें पता है क्या है, ठीक है। इस नाउन के बारे में हम अवेयर हैं कौन से डोर की बात हो रही है, महा के डोर की बात हो रही है। शी ओपन द डोर, देयर वॉज डैश ओल्ड मैन, ओके ओल्ड मैन, ओ से स्टार्ट हो रहा है, सो इट्स अ वॉवल, सो वी विल राइट देयर वॉज एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द डोर। यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था जो दरवाजे पे खड़ा था, इट वॉज हर नेबर, वो उसका नेबर था, यानी हमसाया था उसका। प्लीज़ कम इन अंकल, सेड महा कहती है अंकल प्लीज़ अंदर आ जाए। वांट यू हैव डैश सीट, वांट यू हैव सीट, उसने कहा है वांट यू हैव डैश सीट, क्या लगाएंगे अब यहाँ पे, यू हैव टू थिंक योर सेल्फ क्लास 4, वांट यू हैव सीट, इस सीट के बारे में पहले हमें बात हुई है, वो कौन सी सीट के बारे में बात कर रही है, उसके कमरे में और भी सीट हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता सीट की कौन से नाउन के बारे में बात हो रही है। हम इसके बारे में सीट के बारे में पहले बात हुई है, हम अवेयर हैं कौन सी सीट के बारे में बात हो रही है, वांट यू हैव, सो वी विल राइट वांट यू हैव a seat, ठीक है, want to have a seat. She continued, can we go to dash lawn, can we go to lawn, asked dash man, हम लॉन में जा सकते हैं, उस ओल्ड मैन ने यानी पूछा कि हम लॉन में जा सकते हैं। कैन वी गो डैश टू डैश लॉन, ओके लॉन क्या है, नाउन, ठीक है, और ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, लॉन की बात हो रही है, लेकिन हमें ये पता है कि लॉन कौन सा है, वहाँ के घर का, और इसके बारे में हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर, मतलब जो हमारी लाइन लिखी उसमें साफ पता लग रहा है कि लॉन के बारे में बात हो रही है, यानी उसके घर के लॉन के बारे में, ठीक है। तो जब वी आर मैंने आपको पीछे बताया था, उन एग्जाम्पल में बताया भी हमें कि व्हेन वी आर अवेयर, अगर हमें कुछ पता लग रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, हम
पहले से हमें पता है उस बारे में, तो हम दा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है किस बारे में बात हो रही है। पहले से हमें पता है कि हमें जब नाउन के बारे में सुन के पता लग रहा है, ठीक है, कि ये इसके बाद इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब हमें जिस तरह उधर केमिस्ट की बात हुई थी, ठीक है, तो हमें पता था कि किस केमिस्ट की बात हो रही है, जो ड्रग स्टोर पे था। तो अब यहाँ पे हमें लॉन का पता लग रहा है कि ये महा के लॉन की बात हो रही है, सो इट इज़ अंडरस्टूड। सो वी विल राइट द, कैन वी गो टू द लॉन, आस्क्ड डैश मैन, आस्क्ड द मैन के बारे में बात होगी। अब उन्होंने यहाँ पे ओल्ड मैन लिखा होता तो क्या आता एन, बट दे हैव जस्ट रिटन मैन, ओल्ड मैन नहीं लिखा, तो वी विल राइट आस्क्ड अ मैन, आस्क्ड द मैन, सॉरी, आस्क्ड द मैन, दैट्स डैश गुड आइडिया, दैट्स क्या, दैट्स गुड आइडिया, गुड जो है वो क्या है, दैट्स अ गुड आइडिया, ओके ओके, लेट्स जस्ट अ सेकेंड, ओके लेट्स, दैट्स अ गुड आइडिया, ओके, गुड आइडिया किसके बारे, कौन से आइडिया के बारे में बात हो रही है। उसने कहा है बाहर चलते हैं, डोंट यू, क्योंकि हम लॉन में जा सकते हैं, उसने पूछा, तो उसने कहा है ये अच्छा आइडिया है, कौन सा अच्छा आइडिया है कि हम बाहर चल के बात करते हैं। हमें पता लग गया ना, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट से कौन से आइडिया के बारे में बात हो रही है। सो that's the good idea, that's a good idea, all right, that's a good idea, let's go there, Maha said, let's go there, Maha said। और इस ये जो आप देख सकते हैं दैट्स गुड आइडिया, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दैट्स अ गुड आइडिया, यानी हमें इस आइडिया के बारे में लेकिन पहले बात नहीं हुई, ठीक है, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम बता रहे हैं उस आइडिया के बारे में, हमें पहले में पता लग रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, दैट्स अ गुड आइडिया, लेट्स गो देयर, महा सेड, व्हेन दे वर सिटिंग ऑन डैश लॉन, जब वो बैठे हुए थे लॉन पे, लॉन के बाद अब देखें ऑन डैश लॉन, लॉन क्या है, नाउन है, जस्ट अ सेकेंड, लॉन के बारे में पहले बात हो चुकी है, तो हमें पता है कौन से लॉन के बारे में बात हुई, लॉन इज़ अ नाउन, और हमें पता लग रहा है ये कौन सा नाउन है, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, तो वी विल राइट द लॉन, ऑन द लॉन दे सॉ डैश स्मॉल बॉय स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, दे सॉ डैश बॉय, कौन सा बॉय है, दे सॉ आ स्मॉल बॉय, हमें नहीं पता कौन से की बात हो रही है, ठीक है, हमें नहीं पता, उनको भी नहीं पता कौन सा है, वो भी पहली दफ़ा उसको देख रहे हैं, तो दे सॉ आ स्मॉल बॉय स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट एंड वेविंग एट डैश रिक्शा। अब एक रिक्शा के बारे में, वो रिक्शा उन्होंने पहली दफ़ा देखा है, एट अ रिक्शा गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सून डैश रिक्शा, अब दोबारा से रिक्शा की बात हुई है, सो व्हाट वी विल राइट, यू हैव टू राइट देयर, क्योंकि ये ऊपर अभी मैंने बात की रिक्शा की, तो पहले हमने आ लगाया, अभी हम क्या लगाएंगे, यू हैव टू गेस, ओके, सून डैश रिक्शा रिटर्न, जो रिक्शा था वो वापस हो गया और स्टॉप्ड एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके पास आके खड़ा हो गया, बॉय, ओके, उस लड़के के पास आके खड़ा हो गया, एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ हिम, डैश बॉय आस्क्ड द ड्राइवर, कौन से लड़के ने, वो कौन सा लड़के, किस लड़के के बारे में बात हो रही है, उस लड़के ने ड्राइवर से पूछा ये लड़का कौन है, इस लड़के के ऊपर बात हो चुकी है, सो वी विल राइट द, यस, द बॉय आस्क्ड द ड्राइवर व्हाट्स डैश टाइम, अब उसने पूछा व्हाट्स टाइम, ठीक है, टाइम क्या है, टाइम हमको पता है क्या होता है, ठीक है, इट इज़ विजिबल, ठीक है, हमें पता लग रहा है, इट इज़ विजिबल फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, हमें पता लग रहा है कि ये कौन सी चीज़, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही टाइम होता है, तो वो विल राइट, हमें इस बारे में पहले से पता है, ठीक है, और हमें इस कॉन्टेक्स्ट, हमें इस नाउन के बारे में पहले से समझ आ रही है पढ़ के ही, तो हम क्या लगाएंगे, जहाँ पे जिस तरह केमिस्ट के बारे में बात हुई थी, तो हम दा क्यों लगाते, क्योंकि हमें पहले से पता था, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, ओके, आई नो, यू ऑल नो, ठीक है, तो आप यहाँ पे वही लगाएंगे जो हमने केमिस्ट के साथ लगाया था, जिस तरह हमें किसी चीज़ के बारे में पहले से जो स्पीकर है वहाँ पे, जो रिक्शे वाला है और जो लड़का है, उसको पता है कि कौन से टाइम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और हमें भी पता लग रहा है, तो क्या लगाएंगे हम, जहाँ पे यू हैव टू गेस इट, यू नॉटी चाइल्ड सेड द ड्राइवर एंड ही ड्रोव अवे, और वो उसने कहा तुम शरारती बच्चे, और वो ड्राइवर ने कहा और वो चला गया, माहा एंड द ओल्ड मैन हैड अ गुड लाफ, और माहा और जो ओल्ड मैन थे वो had a good laugh, वो अच्छे से हंसे, okay, that's all about it. Now come to the learn spelling which is on the page number 39, okay. Below is a paragraph from the story, उन्होंने हमें एक स्टोरी में से एक पैराग्राफ दी है, it has 7 spelling errors, उसमें स्पेलिंग्स के मिस्टेक्स हैं, 7 स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, स्पॉट देम, आपने उनको देखना है कि कौन कौन से स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, करेक्ट देम, और आपने उनको ठीक करना है, चेक योर आंसर्स विद द टेक्स्ट इन द स्टोरी, आपने अपने आंसर्स को देखना है स्टोरी के टेक्स्ट में से, ठीक है, टेक्स्ट में से, यानी आपने इस चैप्टर को, जो टेक्स्ट यानी उसमें जो सारा चैप्टर लिखा है, आपने उसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ना है, और आपने उसमें से देखना है कि वहाँ पे कौन से आंसर, कौन से वर्ड्स लिखे हुए थे, उनके क्या स्पेलिंग्स थे, और यहाँ पे कौन से गलत हैं स्पेलिंग्स, ठीक है।
Okay, this is your home task, class 4. So I will read it for you, this paragraph, and you have to check this. You have to find this paragraph in your chapter, which is of 2 pages. Just you have to find this paragraph, and then you have to find the words which are written wrong here. Okay, then Tess put the money into a purse and पर्स. ओके, आई विल टेल यू द फर्स्ट वन इनटू पर्स. ओके, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि पर्स के स्पेलिंग क्या होते हैं, PURSE. सो इट इज़ अ मिस्टेक हियर. So what you will do is you will underline the purse and you will write the correct spellings at the top of this word. Okay, पर्स को आप अंडरलाइन करेंगे, उसके ऊपर उसके करेक्ट स्पेलिंग्स लिखेंगे. टेस्ट ने अपने पुट द मनी इनटू अ पर्स. टेस्ट ने अपने पैसे अपने पर्स में रखे एंड मेड हर वे टू ड्रग स्टोर. और वो दवा खाने में चली गई. द केमिस्ट सॉ हर बट डिडंट. केमिस्ट ने उसे देखा लेकिन बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी, उस पर तवज्जो नहीं की. व्हेन टेस्ट कंटिन्यूड टू स्टैंड बिफोर द काउंटर. लेकिन जब टेस्ट काउंटर के पास आके खड़ी हो गई, सेड टू हर, उसने उससे कहा, केमिस्ट ने कहा, साउंडिंग रादर अनॉयड. जो केमिस्ट था उसने बहुत गुस्से में उससे कुछ कहा. व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु हैज़ जस्ट अराइव्ड फ्रॉम शिकागो. उसने कहा, आप तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने भाई से बात करूँ जो अभी अभी शिकागो से आया है. ओके, देयर आर 6 मिस्टेक्स एंड 7 मिस्टेक्स एंड यू हैव टू फाइंड देम इन द टेक्स्ट. सो दिस इज़ योर होम टास्क. डू इट. गुड लक class 4 and I will meet you now in the next lecture. So good luck. Take care. Allah Hafiz.